السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قربت جانا بائی میرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 14۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے، کس سٹی سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کا موسم متغیر ہو رہا تھا۔ نورے کو نئے کپڑوں کی ضرورت تھی جسے خریدنے وہ زیام شاہ کے ساتھ آج صبح ہی شاپنگ مال آ گئی تھی۔ عشی کو وہ حرم کو پکڑ آئی تھی۔ زیام، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زیام کے ساتھ چلتی نورے نے زیام شاہ کو مخاطب کیا تو پہلی فرصت میں ہی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں پوچھو، اجازت کیسی؟ زیام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو نورے بھی تھوڑا پرسکون ہوئی۔ وہ اب آسانی سے زیام شاہ سے ہر بات کر لیتی تھی، اسے زیام شاہ سے اب خوف نہیں آتا تھا، اور یہ سب زیام کی بدولت ممکن ہو سکا تھا۔ اس نے نورے کو ٹریٹ ہی اسی طرح کیا تھا کہ اس کا خود بخود زیام پر یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب کون سی جاب کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے کام کا ذکر نہیں کیا۔ نورے کے ذہن میں کھٹکتا سوال آج زبان پر آ ہی گیا تھا تو اس کے معصوم سے سوال پر زیام شاہ بہم سا مسکرایا۔ نورے، میں ڈیٹیکٹیو ہوں، زیام کے پرسکون لہجے میں بتانے پر نورے نے حیرانگی سے اسے گھورا۔ کیا آپ ڈیٹیکٹیو ہیں؟ مطلب آپ انویسٹیگیٹر ہیں؟ اس کے پوچھنے پر زیام شاہ نے اپنے سر کو خم کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن جب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ انویسٹیگیٹر ہیں تب آپ نے بولا تھا نہیں۔ نورے نے اپنی پہلی ملاقات اسے یاد کروائی جب وہ اس سے اتنی پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ایک بار پھر زیام شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ تب تم میرے لیے اجنبی تھی اور میں اجنبیوں کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیبی کلاتھ مارکیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اب کیوں بتایا آپ نے؟ نورے سپاٹ لہجے میں پوچھتی کچھ کپڑوں کے اسٹف چیک کرنے لگی، کیونکہ اب تم انجان سے جان بن گئی ہو، تم میری ہو، پھر تم سے کیا چھپانا؟ زیام شاہ کا دل چرانے والا لہجہ نورے کے جسم میں ایک پل کے لیے کرنٹ لگا گیا۔ اب وہ اس کے جواب میں کیا بولے؟ اس کی بات کو انسنی کرتی وہ اپنا اور اس کا دھیان بھٹکا گئی۔ زیام، یہ ڈریس دیکھیں، یہ اچھا ہے نا؟ ہاتھ میں پکڑا سوٹ اس نے زیام کی جانب کیا تو زیام نے کاٹتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی جلدی وہ بات بدل گئی تھی۔ تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک باغ میں آ گئے۔ باغ میں اتنا ہجوم تو نہیں تھا، اس لیے زیام شاہ نے نورے کو وہاں بیٹھنے کا کہا۔ نورے، تم یہیں پر بیٹھو، میں نے کچھ خریدا ہے، میں بس ابھی لے کر آیا، یہیں رہنا، میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ نورے کو باغ کے درمیان میں بٹھایا وہ لگے ہاتھ نورے کے لیے وہ انگوٹھی خریدنا چاہتا تھا جسے وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ آس پاس فیملیز بھی تھی، اس لیے وہ پرسکون ہو کر رنگ خریدنے چلا گیا۔ ابھی وہ انگوٹھی خرید ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر آریان کی کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، ایک اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز وہاں ہی گر گئے۔ موبائل کان کے ساتھ لگائے اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے اور دوڑنے والے انداز میں وہ مارکیٹ سے نکلتا پیدل ہی پاس والے ہسپتال کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ ہر چیز بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس آریان پاشا کے بولے گئے الفاظ جو اس کے کان میں سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ نورے کو بھی بھول گیا تھا، اسے باغ میں اکیلا چھوڑے انتظار کرنے کا بولتے، اب نہ جانے اس کی واپسی کا امکان کس وقت ہونا تھا۔ بائبل، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ بائبل کے سامنے بیٹھی تالی اپنی محبت کو بچانے کے لیے صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر بائبل کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اگر تم اسے نہیں جانتی پھر وہ تمہارے لیے اتنا باولا کیوں ہو رہا تھا؟ آنکھیں سکیڑ کر تالیہ کو دیکھتے اس نے تندہی سے بولتے کینہ توز نظروں سے تالیہ کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں ایسا کر رہا تھا، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کرو، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کو پورا اعتماد بناتی ہوئے بائبل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں گھیر گئی۔ اسی وقت اس نے تالیہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دھکارتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تو تالیہ نے زخمی نظروں سے بائبل کو دیکھا جس سے ایک دم سے تاؤ چڑھا تھا۔ اچھا، اگر تم اسے نہیں جانتی پھر تمہیں اس کا نام کیسے پتا؟ تم کل اس کے نام سے مخاطب رک جانے کو بول رہی تھی۔ زہریلی نظروں سے اس پر نظروں کا تسلط باندھتے اس نے جارحانہ لہجے میں دہاڑتے ہوئے پوچھا۔ تالیہ ایک دم سے خاموش ہوئی اپنی چوری پکڑی جانے پر۔ ایک ڈر سا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ بائبل سے جھوٹ نہیں بولتی تھی اور آج پہلی دفعہ اس نے جھوٹ بولا تھا، مگر پکڑی گئی تھی۔ کیسی محبت تھی اس کی کہ اسے اتنی صفائیاں دینی پڑ رہی تھی۔ وہ تو تم تو جانتے ہو میں بزنس وومن ہوں، تو بس ڈیلنگ میں ایک دو بار دیکھا تھا اس شخص کو۔
हकलाती हुई पूरी बात बनाती वो एक और झूठ बोल गई। वो उसे नहीं बता सकती थी कि बारान उसी के ऑफिस में होता है, वरना बाइबल ने उसे छोड़ देना था। और ये डर ही तो तालिया के जिस्म से जान निकाल देता था। अच्छा, ऐसी बात है। मानी खस सा पूछते उसने अब की बार तालिया का नरम और नाजुक हाथ अपने हाथ में फंसाया तो तालिया ने खुद को कंपोज करते इस बात में सर हिलाया। चलो मैं मान लेता हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन वो शख्स जिस तरह तुम्हारे लिए पागल हो रहा था, मुझे तो कोई आशिक ही मालूम हो रहा था। बाइबल के ठहर ठहर कर बोलने पर तालिया के गले में गिल्टी उभरती हुई मासूम हुई, उसका हलक तक कड़वा हुआ। अच्छा, तुम बोल रही हो तो मान लेता हूँ। आज तक तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? दिलफरेब लहजे में बोलते उसने तालिया की आवारा लटों को उसके चेहरे से पीछे किया। तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? तालिया को अपने काबू में करने के लिए वो उसे मसरूर करने लगा। यकायक शादी का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर खौफ से खजा के रंग दौड़े। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। जल्द जज्बाती होती तालिया फौरन से पहले हामी भर गई तो बाइबल ने प्यारी आंखों से उसे देखा। ठीक है, फिर तो मैं चाहता हूँ हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। बाइबल के दिल में भी एक डर बैठ गया था, कहीं वो शख्स उसकी सालों की मेहनत को ज़ाया ना कर दे, कहीं वो शख्स उससे तालिया को न चुरा ले। इसलिए वो अब जल्द से जल्द तालिया का बंदोबस्त करना चाहता था, ताकि हर काम में सिर्फ उसका ही फ़ायदा हो। तुम जब बोलोगे मैं तब तुमसे शादी कर लूँगी, बस मुझसे नाराज़ मत होना। बेइख्तियार होती तालिया ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। तालिया, मुझे माफ़ करना, कल गुस्से में तुम्हें न जाने क्या बोल दिया और गलती से धक्का भी दे दिया था। बाइबल अपना रास्ता साफ करने के लिए वो सब कर रहा था जिससे तालिया का उस पर यकीन गहरा हो जाए और वो आसानी से उसकी बिछाए जाल में फंस जाए। और फिर तालिया की अंधी मोहब्बत ने से एक बार तो कुएं में धक्का देना ही था, ताकि उसकी आंखें खुल जाए, वो सही और गलत की पहचान कर ले। अस्पताल में पहुंचते ही रिसेप्शन से कमरे का पता करते हुए आईसीयू की जानिब बढ़ा। दीवानावार भागता हुआ आईसीयू तक पहुंचा। आर्यन, आर्यन, क्या हुआ बारान को? आर्यन की आर्यन को आईसीयू के दरवाजे के बाहर परेशान खड़ा देख वो उजरत में पूछने लगा। सांसों का निजाम उलझ रहा था, गला खुश्क हो गया था, धड़कनें बारान का जिक्र सुनते ही बेतरतीब हो गई थी। उसकी नस्बत आर्यन की हालत उससे कहीं ज़्यादा बदतर थी। बारान और मैं आज सुबह ऑपरेशन पर गए थे, वहाँ पर उसके बाजू पर गोली लग गई। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। आर्यन ने ज़ियाम को तसल्ली देनी चाहिए और फिर वो खुद को तसल्ली दे रहा था। उससे सहन नहीं हो रहा था, उसका जान से प्यारा दोस्त आईसीयू में था, वो दोनों कैसे पुरसुकून हो सकते थे? डॉक्टर्स क्या बता कर गए हैं? मतलब वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक हो जाएगा ना? ज़ियाम शाह भीगे हुए लहजे में बावलों की तरह आर्यन से पूछता बेचैन हो रहा था। ज़ियाम, फिक्र ना करो, तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। कर्नल अंकल बारान के बाबा उनकी तरफ आते ज़ियाम शाह के कंधे पर हाथ रख गए तो ज़ियाम ने उसी वक्त मुड़कर उनकी जानिब देखा और अगले ही पल उनके सीने से लग गया। तो आर्यन आईसीयू के दरवाजे से बारान खानजादा को देखने लगा, जो आज उनके साथ मौजूद नहीं था। वो बंद आंखें किए बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। उसके आसपास मौजूद डॉक्टर्स उसकी गोली बाजू से निकाल रहे थे। उसे अभी होश नहीं आया था। ज़ोहर की अजान की आवाज़ उनकी समातों से टकराई तो आर्यन और ज़ियाम दोनों ने वज़ू किया और नमाज अदा करने के लिए मखसूस जगह पर चले गए। तन्हाई में रो रो कर उन दोनों ने अपने रब से दुआ की थी, क्योंकि डॉक्टर बता कर गए थे गोली उसके बाजू के अंदर तक गई है, उसका बाजू शायद जल्दी मूव ना हो सके। इस दौरान ज़ियाम के जहन से नूरी का ख्याल निकल गया था। उसका दिल और दिमाग सिर्फ अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद था। बाकी ज़िंदगी में कुछ और भी है, उसे इस वक्त कुछ याद नहीं था। नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते वो दोनों एक साथ आईसीयू की जानिब बढ़े, जहाँ खड़े डॉक्टर कर्नल अंकल से बात कर रहे थे। हमने उनकी गोली निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर है, मगर उन्हें आज के दिन अस्पताल में ही रहना होगा, कल शाम को डिस्चार्ज मिलेगा। डॉक्टर अपनी बात बोलकर खामोश हुए तो आर्यन पाशा ने जल्दी से सवाल किया, डॉक्टर, उसके बाजू में कोई मसला तो नहीं हुआ? आर्यन का लहजा परेशानी से चूर था। नहीं, गोली तो हम निकाल चुके हैं, बाकी उन्हें अभी ज़्यादा मूव मत करने दें। कुछ वक्त के लिए वो इस बाजू से ज़्यादा वजन भी मत उठाए। डॉक्टर ने जवाब दिया और चले गए तो आर्यन, ज़ियाम और कर्नल अंकल एक साथ आईसीयू के दरवाजे को पार करते बारान को देखने के लिए अंदर दाखिल हुए, जो महा का ढीठ निकला था। बेड पर टेक लगाए वो लेटकर अपनी बत्ती सी की नुमाइश कर रहा था, और ये सब उन्हें दिखाने के लिए ही था, ताकि वो उसे लेकर परेशान मत हो। उन्होंने देखा बारान खानज़ादा के चेहरे पर दर्द की एक भी रमक नहीं थी। मुस्कुरा तो ऐसे रहा है जैसे हम तेरी बारात लेकर आए हैं। बारान की बाएं जानिब जाते ज़ियाम ने तंज करना ज़रूरी समझा। उन्हें रुलाकर अब वो खुद हंस रहा था। बारात लाते ना तो मैंने तो इसी बेड पर भंगड़े डालने शुरू कर देने थे। बारान का अंदाज शौकिया था, बर्ताव ऐसा कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चल, ज्यादा बकवास मत कर, तबीयत ठीक नहीं है तेरी, आर्यन पाशा ने डपटने वाले अंदाज में उसे देखते हुए कहा। तो बारान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। मुझे क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बारान ने हाथ पांव हिलाते नजर आर्यन पर ही रखी। वो अभी तक उसके लिए फिक्रमंद था। डॉक्टर
लगता है डॉक्टर ने गोली की जगह तेरा भेजा निकाल दिया, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बाजू मत हिला अपना, वरना बगैर किसी का लिहाज किए 2-3 लगा दूंगा तुझे। आर्यन मसनूई बरहमी से बोला तो बारान की जबान पर कल्फ लगी। बारान, बेहतर फील कर रहे हो ना कि दर्द हो रही है? कर्नल अंकल ने तफ्तीश से पूछा। वो जानते थे अपने बेटे को, जो दर्द छुपाने में माहिर था। जी बाबा, मैं ठीक हूँ, और दर्द तो ज़रा सी भी नहीं हो रही। चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट से जाते बारान मुतमईन अंदाज में बोला तो वो कुछ पुरसुकून हुए। ठीक है बच्चों, अपने दोस्त का ख्याल रखो, मुझे काम से जाना पड़ेगा। आरियाना, आज शाम को मैं तुम्हारा नेशनल बैंक में इंतज़ार करूंगा। वक्त पर आ जाना। क्राइम लेडी को पकड़ने का सुनहरी मौका हम गंवा नहीं सकते। कर्नल अंकल का लहजा प्रोफेशनल था, बाजू कमर पर बांध रखे थे, कदम बस मुड़ने की मुंतजर थे। जी अंकल, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपने न्यूज़ चैनल में खबर पहुंचा दी थी। नेशनल बैंक के हवाले से उन्होंने एक ताज़ा खबर तैयार करवाई थी, जो ख़ास तौर पर क्राइम लेडी के लिए थी। बैंक की तिजोरी में उन्होंने जेवरात महफूज रखवा दिए थे, और उन जेवरात में ही एक अंगूठी ऐसी थी जिसमें निहायत एहतियात से आर्यन पाशा ने कैमरा फिट कर दिया था। इस वक्त हर चैनल में यही न्यूज़ चलाई जा रही थी कि नेशनल बैंक की तिजोरी में जिसका सोना मौजूद है वो आकर ले जाए, क्योंकि नेशनल बैंक अब बंद होने वाला था, और ये महज एक चाल थी। हाँ मेजर आर्यन, सारा काम हो चुका है, बस अब क्राइम लेडी का इंतज़ार है। धीमा सा मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि क्राइम लेडी के जिक्र पर अब हर बार बारान का मूड ऑफ हो जाता था। उसे यकीन था कि वो तालिया नहीं होगी, मगर एक डर सा भी था, उसे खोने का डर, उससे दूर हो जाने का डर। कर्नल अंकल के जाने के बाद डॉक्टर आए थे, जिन्होंने उसे चेक करने के बाद आईसीयू से वार्ड में दाखिल कर दिया। ज़ियाम बारान को ग्लास में जूस डालकर दे रहा था, और आर्यन उसके पास बैठा हुआ था। अभी इतनी ही देर गुजरी थी जब छपाक से दरवाज़ा खुला और हानम और तालिया एक साथ अंदर दाखिल हुई। हानम ने अशी को पकड़ा हुआ था, और तालिया के हाथ में बुके था जो बारान के लिए लाई थी। हानम के कहने पर हानम को जैसे ही आर्यन के जरिए ये पता चला, वो फौरन से तालिया के साथ अस्पताल आ गई। ज़ियाम ग्लास में जूस डाल रहा था, इसलिए अभी उसका ध्यान दरवाजे की जानिब नहीं गया था। ज़ियाम, अगर तुम यहाँ पर हो तो नूरे कहाँ है? अंदर आती हानम ने ज़ियाम को अकेले देखते ही सवाल किया, जबकि पुरसुकून ज़ियाम को एकदम से झटका लगा। दफतन उसने मुड़कर हानम की जानिब देखा। उसका दिमाग घूमा। उसे याद आया कि नूरे को तो वो बाग में ही छोड़ आया है। वो हमेशा अकेले ही बाहर जाता था, और आज नूरे के साथ पहली दफ़ा जाने पर ही वो भूल गया था। उसके होश उड़ चुके थे। ठीक उसी वक्त उसके हाथ से जूस का गिलास फिसलकर ज़मीन बोस हुआ। फिर उसी पल वो दौड़ता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि ज़ियाम को परेशान देखकर उन सब की भी सांस सूख गए थे। नूरे कहाँ थी? वो इतनी जल्दी में क्यों गया था? सबकी सोच यहीं पर अटकी हुई थी, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। हानम और तालिया तो सही मानी में परेशान हुई थी। दूसरी जानिब ज़ियाम शाह अस्पताल से बाहर निकलता सड़क पर तेज़ रफ्तार से भाग रहा था। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? वो नूरे को कैसे भूल सकता था? वो अपनी कुल कायनात को अपने जहन से कैसे निकाल सकता था? इस तरह की कैफियत में वो बेचैन होता अंधाधुन भाग रहा था। दिल में अजीब ही डर घेरे डाले हुए थे, कहीं इसे कुछ हो ही ना जाए, कुछ ना हो जाए, कहीं वो चली ना जाए, कहीं उसे कोई ले ना जाए। वो तो उसे एक मिनट भी अकेला घर से बाहर नहीं रहने दे सकता था, और अब वो तन्हा बाग में उसे 2 घंटों से छोड़ आया था। इस वक्त वो सिर्फ खुद को कोस रहा था कि उसके जहन में नूरे का ख्याल नहीं आया। दौड़ दौड़ कर आखिरकार वो बाग में पहुंच गया था, मगर सांस हलक में ही कहीं अटका रह गया था। नॉर्मल मौसम के बावजूद भी उसके पसीने छूट रहे थे। कुशादा पेशानी पर बेशुमार बल पड़े हुए थे। डूबते दिल के साथ उसने उस जानिब कदम बढ़ाए जहां वो नूरे को बैठा कर गया था। दिल थरथरा रहा था। ज़बान में बस एक ही दुआ थी कि नूरे वहीं पर हो, वरना ज़ियाम शाह जी नहीं पाएगा। बाग के उस हिस्से में दाखिल होते उसने देखा सिमट की बने बेंच पर बैठी नूरे अफरोज़ घुटनों में सर दिए सिसकियों में रो रही थी। बाग में कोई इक्का दुक्का अफराद ही मौजूद थे। उसे महफूज वहाँ पर देखकर ज़ियाम शाह का अटका सांस मुश्किल बहाल हुआ। उसे देखते ही जिसमें एकदम से जान आई। ज़बान पर पहला लफ्ज़ ही शुक्र अल्लाह का अदा हुआ। जल्दी से उसके पास पहुंचते उसने नूरे को धीमे लहजे में आवाज़ दी, तो सिसकियों में रोती नूरे ने झटके से अपने सर घुटनों से उठाकर अपने सामने बेहद परेशान खड़े ज़ियाम शाह को देखा। ज़ियाम की नज़रें उसकी नज़रों से टकराई। उसकी नाजुक हालत की गवाही उसका चेहरा दे रहा था। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें सुर्ख मुतरन्नुम और सूजी हुई थी। न जाने वो कब से रो रही थी।
لیکن اگلے ہی لمحے ضیام شاہ نے اس کا بازو کھینچ کر کھڑا کرتے اسے اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگاتے اچھی طرح خود میں بھیجا۔ پاگلوں کی طرح اس سے لپکا ضیام شاہ اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ کر اس کی موجودگی کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ چلے جائے یہاں سے، کیوں آئے آپ یہاں؟ اب کیا لینے آئے ہیں؟ جھٹکے سے ضیام شاہ کو خود سے دور ڈھکیلتی نورے بے خودی میں بلند آواز میں چیخی۔ اس نے 2 گھنٹے کتنی مشکل سے گزارے تھے صرف وہ جانتی تھی۔ 2 منٹ کا بول کر وہ 2 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ نورے مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، باران کو گولی لگی تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ ضیام شاہ نے جلدی سے وجہ بتائی، کہیں نورے زیادہ ہی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ بھول گئے تھے، آپ کو پتا ہے میں 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی لیکن آپ نہیں آئے۔ ایک بار پھر سے سوچتی وہ اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نورے مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، تم جو سزا دو گی ضیام شاہ کو منظور ہوگی۔ ضیام نے پیار سے اس کے چہرے پر موجود ہاتھوں کو تھامتے ان پر نرمی سے گرفت مضبوط کی۔ آپ مجھے بھول جایا کریں گے، آپ سے آج غلطی ہوئی، آپ سے دوبارہ بھی غلطی ہوگی، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی اور آپ نہیں آئیں گے۔ ہچکیوں میں روتی ہوئی وہ اپنا ڈر بیان کرنے لگی۔ نورے دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا میری جان، ضیام شاہ اپنی نورے کو کبھی نہیں بھولے گا، ضیام شاہ نورے کو اپنی سانس سے بنا لے گا۔ اگر نورے ضیام شاہ سے دور ہوئی تو ضیام شاہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اپنی جانب کھینچتے اس نے ایک بار پھر سے نورے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اب جا کر نورے کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی۔ وعدہ کرے اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ نورے کے دل میں ابھی بھی ڈر موجود تھا۔ ضیام نے اس کی پیٹھ کو سہلاتے پیار سے جواب دیا۔ ضیام شاہ کی مجال جو دوبارہ کبھی نورے کو تھوڑی دیر بھی تنہا چھوڑ دے۔ نورے سے الگ ہوتے اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب نورے کی پیشانی پر رکھے تو ایک دم سے نورے نے خود کو ضیام کے حصار میں محفوظ محسوس کیا۔ نورے کو لیے وہ سیدھا ہسپتال ہی آیا تھا کیونکہ وہ بھی باران کا حال احوال دریافت کرنا چاہتی تھی۔ پھر حانم اور تالیہ بھی تو ادھر ہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا باران خانزادہ خاموش تھا، اس سے دور صوفے پر بیٹھی تالیہ کشمکش کا شکار تھی۔ عیادت تو کرنے آ گئی تھی مگر اس کا حال ابھی تک اس نے نہیں پوچھا تھا۔ آریان جانتا تھا باران اور تالیہ کو تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے وہ حانم کو لیے باہر کھانا لینے چلے گئے۔ جبکہ تذبذب کا شکار ہوتی تالیہ اب خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، خود کو کمپوز کرتی وہ اپنے قدم باران کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو خود ہی، اگر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تو میں تم سے پوچھنے کا تکلف کیوں کرتی؟ تالیہ ایک دم بدمزہ ہوئی تو باران تیکھا مسکرایا، مگر میں تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری طبیعت اور تمہارے موڈ کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ تم مجھے جس نظر سے دیکھتے ہو میں تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتی، اس لیے میں پوچھ لوں تو بہتر رہے گا۔ بازو کیسا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہی؟ تالیہ نے ایک نظر اس کے بازو پر ڈالی، اس کا بایاں بازو سفید پٹی میں قید تھا۔ اگر کہوں کہ درد ہو رہا ہے تو تم کیا کرو گی؟ تو تمہارا درد کم کرنے کے لیے تمہارا بازو کاٹ دوں گی۔ سلگتے لہجے میں بولتی باران کو فقط گھورنے پر مجبور کر گئی۔ پھر ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ میرے دل میں بہت درد ہے، اسے باہر نکال پھینکو۔ ہاں؟ باران کا لہجہ درد بھرا تھا تو تالیہ نے اپنی آنکھیں گھمائیں، مگر اس سے پہلے وہ سڑے ہوئے لہجے میں کوئی جواب دیتی اسی وقت ضیام شاہ اور نورے کمرے میں داخل ہوئے۔ نورے کو ضیام کے ساتھ دیکھ کر وہ فوراً سے جاتی نورے کے گلے لگ گئی۔ اتنی دیر میں آریان اور حانم بھی کھانا لے کر آ گئے تھے، پھر ان سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ ہسپتال سے وہ سیدھی ہوٹل میں گئی جہاں ایم جے اس کی ساری تیاری کر چکا تھا۔ شام ہو گئی تھی، اندھیرا ڈھل رہا تھا۔ مجھے یقین ہے یہ خزانہ بھی کسی اور کا یا پھر حکومت کا ہے جسے امیر لوگ بآسانی اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ آنکھوں میں لینس لگاتی وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دینے لگی۔ ہاں، ہر بار ایسا ہی تو ہوا ہے۔ ایم جے نے بھی اپنے چہرے کو ماسک کے پیچھے چھپایا۔ تم جائزہ لے آئے تھے نہ، وہاں گیٹ مین ہی ہے نا بس رکھوالی کے لیے۔ اب وہ اپنے سر پر بلیک کیپ چڑھا گئی تھی، ہاتھوں میں گلوز بھی پہن لیے تھے۔ بلیک ٹریک سوٹ اس نے آتے ہی پہن لیا تھا۔ ہاں حانم، میں سب دیکھ آیا ہوں، بینک خالی ہے، ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ایم جے نے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے آج صرف اپنی آنکھیں بدلی تھی، باقی چہرہ وہ ماسک کے نیچے چھپا گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاتے ہی کیمروں کو ہیک کر کے ڈیمیج کر دینا، میں اپنا کام کر لوں گی اور کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ ایک آخری دفعہ خود کو شیشے میں دیکھتی وہ اپنا موبائل جیب میں ڈالتی جیری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہوٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتے وہ بینک کی جانب بڑھ گئی تھے۔ تقریباً 15 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد بینک کے پاس گاڑی روک کر جیری گاڑی سے نکلا اور کلوروفارم رومال کی مدد سے وہ ان دونوں رکھوالوں کو 1 سیکنڈ میں ہی بے ہوش کر گیا۔ حانم اتنی دیر گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھی، اس نے موبائل میں وقت دیکھا، 9 بجنے ہی والے تھے۔ جب جیری کے اشارہ کرنے پر وہ گاڑی سے باہر نکلتی، ارد گرد متلاشی نظریں گھماتی پرسکون قدم اٹھاتی بینک کے اندر داخل ہو گئی۔ جیری نے آس پاس ایک نظر دوڑائی، وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ حانم کو مخصوص کمرے کی جانب جاتا دیکھ فوٹیج روم کی اور بڑھ گیا تاکہ ایک ایک
कैमरे का मंजर सिया कर सके। जबकि बैंक से थोड़ा दूर गाड़ी में बैठे कर्नल अंकल और साथ आर्यन पाशा उसे लैपटॉप में मौजूद कैमरे से देख रहे थे। एक खुफिया कैमरा जो उन लोगों ने तिजोरी वाले कमरे में लगवाया था। वो देख रहे थे क्राइम लेडी तो फिलहाल पहचानने में नहीं आ रही थी। पीछे वाली सीट पर 2 एजेंट्स बैठे थे जिनकी नज़रें भी लैपटॉप पर मौजूद थी। आर्यन पाशा चाहता तो वो अंदर जाकर उसे अच्छे से कब्जे में भी कर सकता था, मगर लिहाज सिर्फ बारान का था, जिसने कहा था जब तक कंफर्म ना हो जाएगा वो तक लड़की तालिया नहीं है तब तक तुम उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ोगे। गाड़ी में मौजूद उन चारों की नज़रें लैपटॉप पर टिकी हुई थी। तालिया की और हानम की हाइट सेम थी, इसलिए आर्यन को अभी तक तो तालिया पर ही शक था। फिर उनकी जसामत भी एक जैसी थी, मगर वो उसका चेहरा देखना चाहता था जिसे उसने मास्क में छुपा रखा था, और आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उसने अपनी कैप को नीचे की जानिब कर रखा था। उनके देखते ही देखते वो तिजोरी के पास आई और अपनी जेब से हेयर पिन निकालती। वो थोड़ा नीचे को झुकती, पिन को लॉकअप में घुमाती, खोलने की कोशिशों में थी। वो माहिर थी हेयर पिन से लॉकअप खोलने में, और अब भी उसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। उस लॉकअप को लॉक खुल चुका था, और दूसरी जानिब एमजे ने सारे कैमरों को बंद कर दिया था। लैपटॉप में एक जानिब सारे कैमरे बंद कर हो चुके थे और दूसरी जानिब सिर्फ दो कैमरों की फुटेज मौजूद थी, एक उस कमरे की और दूसरे अंगूठी में मौजूद कैमरे की। देखते ही देखते उसने लॉकअप को खोलते अंदर से सारा खजाना बाहर निकाला और पोटली समेत एक बार अंदर खजाने पर नजर डालती वो बाहर की जानिब बढ़ने लगी। कमरे में लगे कैमरे से ज़रा भी पता नहीं चल सका था कि वो कौन है। उसकी असल शनाख्त तो अब उस अंगूठी में मौजूद कैमरे से ही रोशनास होनी थी। बस इस शातिर दिमाग वाली लड़की को उस कैमरे का इल्म ना हो सके, और इससे पहले ही वो लोग उसका चेहरा देख ले। कमरे से बाहर आती वो एमजे को मैसेज करती, बैंक से बाहर निकलती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई तो दूर खड़ी आर्यन पाशा की गाड़ी ने देखा अब बैंक से वो लड़का बाहर निकला था जो उसकी मदद करता था। वो भी जाकर गाड़ी में बैठता गाड़ी को जन से भगा ले गया। आर्यन, ये लड़का बाइबल तो नहीं है? कर्नल अंकल ने गौर से उस लड़के को देखा जो सही से दिखाई नहीं दिया था। एक तो उसने मास्क लगा रखा था, और अंधेरे की वजह से के बावजूद सही से नजर भी नहीं आया। हो भी सकता है, लेकिन वैसा नहीं लग रहा। बाइबल की हाइट 6 फीट है और ये लड़का 6 फीट से कम दिखाई दे रहा है। एक पल को आर्यन को भी शुबा हुआ कि बाइबल उसका प्यार है, क्या पता वो उसके साथ मिलकर चोरियां करती हो, मगर उसकी कम हाइट ने उन्हें अंदाज़ा लगवा दिया था कि वो बाइबल नहीं है, वो कोई और ही था। मगर कौन था, अभी ये भी उन्हें पता लगवाना था। अब इंतज़ार है बस इसी एक झलक का, आर्या ने कुछ सोचते हुए कहा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। वो जानता था क्राइम लेडी जब एक एक जेवर को देखेगी तो इस दौरान वो लोग क्राइम लेडी को देख लेंगे। बाइबल, तुम ठीक तो हो ना? इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बाइबल के डेरे पर आती तालिया परेशानी से दौड़ती हुई उसके पास आकर पूछने लगी। अस्पताल में बारान के साथ ज़ियाम और नूरे रुके हुए थे क्योंकि बारान ने आज की रात अस्पताल में ही रहना था, मगर तालिया और हानम घर आ गई थी। फिर बाइबल के फ़ौरन से बुलाने पर वो परेशानी में रात के 10 बजे उसके डेरे में मौजूद थी। हाँ, हुआ है ना, तुमसे प्यार हो गया। बाइबल की छिछोरी बातों में तालिया इतनी आसानी से आ जाती थी। वो कॉफ़ी बना रहा था जब उसने तालिया को सोफे पर बैठने का कहा। वो तो तुम्हें 2 साल पहले ही हो गया था। तालिया थोड़ा सा शर्माती हुई सोफे पर बैठ गई जब बाइबल ने कॉफ़ी का मग उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे तालिया ने शुक्रिया अदा करके थाम लिया। हाँ, लेकिन आज इस प्यार को हकीकत में बदलना है, आज अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करना है, आज दोनों की मोहब्बत को एक करना है। बाइबल के अल्फाज तालिया के कुछ खासा पल्ले नहीं पड़े थे, तो उसने दोबारा से पूछना चाहा, बाइबल क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तालिया ने लाइल्मी जाहिर की तो बाइबल ने दूसरे सोफे पर में मौजूद एक शॉपिंग बैग वाला भारी शॉपर उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, तुम जोड़ा पहन लो जल्दी से। बाइबल ने सपाट अंदाज में कहा तो तालिया ने उसे हैरान कुन नज़रों से देखा। मगर बाइबल, इतनी इमरजेंसी में, मतलब इतनी जल्दी क्या है? मैंने कुछ तैयारी भी तो करनी है। फिर मैं भी अपनी फिर मैंने भी अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। उनके बिना कैसे मैं निकाह कर लूँ? तालिया को बाइबल की बात कुछ हजम नहीं हुई थी तो बाइबल जोड़े को वहाँ पर रखता उसके पास आ बैठा। तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ या तुम्हारी दोस्ती? उसने एब्रोच काते हुए पूछा तो तालिया ने चौंक कर उसे देखा। इसके चेहरे पर ही एकदम हल्का हल्का गुस्सा नुमाया होने लगा। बाइबल, ये कैसा सवाल है? मुझे जवाब चाहिए तालिया। हर वक्त तुम मुझसे शादी करने का जिक्र करती रहती हो, और अब जब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें अब भी मसला है? नहीं बाइबल, मुझे मसला नहीं है, बस ये चाहती हूँ मेरी खुशी में सब शामिल हो। कल तक तुम्हारी खुशी सिर्फ मैं था, और आज तुम मुझ पर दूसरों को क्यों तरजीह देने लगी हो? नहीं बाइबल, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है तालिया तबरेज़ खान? निकाह होगा तो आज ही होगा, वरना तुम जा सकती हो।
अचानक से वो गुस्से में आ गया था। उसने एक दिन में ही बारान के बारे में पता करवा लिया था कि वो तालिया के साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर उसके ऑफिस में ही रहता है, और तालिया ने उसे झूठ बोला था। वो ये तक जान गया था कि वो तालिया से मोहब्बत करता है। इसलिए बाइबल ने जल्दी से तालिया को अपने जाल में फंसाने का सोचा, कहीं बारान खानजादा उसके ताज़ा माल को ले ना उड़े। तालिया खामोश हो गई थी, जानती थी कि उसे अभी उसी वक्त ही निकाह करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी वो बाइबल के सामने अपनी ख्वाहिश को रद्द करती निकाह के लिए रजामंद हो गई थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुमसे निकाह के लिए। तालिया ने हामी भरी तो बाइबल के चेहरे पर तायराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वेरी गुड माई गर्ल, अब जाओ और जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, और ऐसा तैयार होना कि मैं देखता ही रह जाऊं। पुरस्कार लहजे में बोलता वो तालिया को लहंगा पकड़ाते कमरे में जाने का बोल रहा था, तो तालिया भी उसकी खुशी को अपनी खुशी समझती लहंगे को पकड़े कमरे में दाखिल हो गई। तालिया को तैयार होने के लिए कमरे में भेजते वो खुद थोड़ा बाहर की जानिब आता। मोबाइल में किसी का नंबर डायल करता कॉल मिला गया। काम हो चुका है मेरे यार। दूसरी जानिब से जैसे ही कॉल उठाई गई, उसे बाइबल की खुशखराश आवाज़ गूंजी। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था जब उसने एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया, तेरे लिए ही तो 2 सालों से इस लड़की को झेल रहा हूँ, वरना जितने इसके नखरे हैं मैं तो 1 मिनट में फारिग कर देता। बाइबल की आवाज़ अब बेजारी भरी थी। कसम से इतनी बेवकूफ़ है ना कि पूछो ही मत। अच्छा, तू जल्दी से मेरे डेरे पर आ जा और ले जा अपनी रानी को। और हाँ, उसके बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हीरोइन चाहिए। अपनी पूरी फैक्ट्री तू मेरे नाम करेगा। बाइबल संजीदा लहजे में बोलता राब्ता मुनक़ता करता अंदर की जानिब बढ़ गया। इतनी देर में तालिया भी सुर्ख भारी काम वाला लहंगा पहनकर बाहर आ गई। सुर्ख लहंगे में गोल्डन रंग का टच दिया गया था। अभी तो उसने मेकअप भी नहीं किया था कि वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी। बाइबल टकाटक उसे ही देखे जा रहा था, जो खूबसूरत तो बहुत थी, मगर बाइबल को उससे मोहब्बत नहीं थी। बाइबल की मदहोश नज़रों से शर्माती हुई वो अपना भारी काम वाला लहंगा उठाकर सोफे के पास आई। अपने बैग को पकड़ती, अंदर से सुर्ख लिपस्टिक निकालती वो अब डेरे में मौजूद छोटे से ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। लेकिन बाइबल की नज़रें उसके पीछे पीछे लपक रही थी। छोटे डॉन, मैंने तो तुझे चांदी का टुकड़ा ही दे दिया। वो अपने जहन में बड़बड़ाया और चलता हुआ तालिया के पास आया। इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? बाइबल ने गंदी नज़रों से उसका सरता पैर जायज़ा लिया, जबकि तालिया लिपस्टिक लगाने के दौरान शर्माई। तुम्हें ही लगती हूँ। लिपस्टिक को अच्छे से अपने होठों पर सजाती हुई मुड़कर बाइबल की जानिब देखने लगी। मेरी होना इसलिए। अपने लफ्ज़ों से तालिया को खुश करता वो उसका बाजू पकड़कर खुद के करीब ले आया। तुम्हारा हुस्न क़यामत है तालिया तबरेज़ खान। तालिया के चेहरे पर नज़रें गाड़ता वो मसरूर लहजे में बोला, तो तालिया ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। तुम यहाँ बैठो, मैं निकाह का इंतज़ाम करता हूँ। तालिया को सोफे पर बैठने का इशारा करता वो खुद चलता हुआ बाहर की जानिब आ गया, जबकि सोफे पर बैठी तालिया ने अपने सामने मौजूद ड्रेसिंग के शीशे से खुद पर नज़र डाली और मुस्कुराने लगी। वो जितनी खुश थी उससे कहीं ज़्यादा हैरान भी थी। बाइबल उसे निकाह कर रहा था, ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। एक तारीख कमरे में बैठे वो दोनों लोग, जिनकी नज़रें लैपटॉप पर मरकूज थी, अभी तक क्राइम लेडी ने उसे खोला नहीं था, और वो लोग उसी के इंतज़ार में थे। उनके देखते ही देखते 15 मिनट हो चुके थे जब कैमरे में अंधेरे की जगह अब रोशनी दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा क्राइम लेडी ने अपनी इस पोटली को खोल लिया था और अब सोने की जेवरात को पकड़े वो बाहर निकाल रही थी। वो अंगूठी टेढ़ी और नीचे होने की वजह से वो लोग अभी तक उसका चेहरा नहीं देख सके थे। फिलहाल कैमरे में सिर्फ उसका जिस्म का आधा हिस्सा नजर आ रहा था, मगर जिस कमरे में थी वो बखूबी दिखाई दे रहा था। आर्यन पाशा ने देखा वो लकड़ी का कमरा था। कमरे में ज़्यादा चीज़ें तो ना थी, मगर अचानक उसकी नज़र दूर से आते एक शख्स पर पड़ी। वो मास्क वाला लड़का एमजे। उसकी शक्ल अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। वो क्राइम लेडी से कुछ बात कर रहा था, मगर आवाज़ वाला कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए वो बस देख ही सकते थे। आर्यन पाशा ने उसी वक्त मोबाइल अपनी जेब से निकाला और कैमरा ऑन करते उस शख्स की तस्वीर अपने मोबाइल में उतार ली। आर्या ने इस लड़के को पहले तो कभी नहीं देखा, और ये पाकिस्तान का लग भी नहीं रहा। तारीख खामोशी में कर्नल अंकल की आवाज़ गूंजी तो आर्या ने गौर से उस शख्स को देखा। उसने भी इस लड़के को कहीं नहीं देखा था। फिर ये कौन था? अंकल, तस्वीर ले ली है ना? अब मैं पता करवा लूँगा। आर्यन पाशा ने पुरसुकून लहजे में बोलते क्राइम लेडी पर नजर टिकाई, जो हाथ में पकड़े एक एक जेवर को देख रही थी। अब उसकी गर्दन भी दिखाई देने लगी थी, मगर उसका चेहरा अभी भी वाज़ेह नहीं हुआ था। मेज़ पर झुका हुआ वो आंखें फाड़ कर कैमरे को देख रहा था, जो अब थोड़ा ऊपर को हो रहा था। देखते ही देखते उसने सारे जेवर देखकर साइड पर रख दिए। अब जो बचा था वो सिर्फ अंगूठी थी, जो उसे पसंद भी बहुत आई थी। अंगूठी को अपने हाथों में लेती वो उसे अपने सामने करती गौर से देखने लगी। उसकी अंगूठी सामने करने की देर थी जब अंगूठी में मौजूद कैमरे ने आर्यन पाशा के लैपटॉप की फुटेज में उसका चेहरा जाहिर किया।
ये देखने की देर थी। आर्यन पाशा का चेहरा एकदम से फक हुआ। लैपटॉप में मौजूद चेहरे को देखते उसकी आंखें बस पहली फैलती ही चली गई। उसे एक पल को लगा जैसे पूरे जिस्म, पूरा ग्लोबल ही उसके सर पर आ गिरा हो, जैसे एकदम उसे किसी ने पटक कर कुछ मारा हो, जैसे स्क्रीन को देखते ही उसकी सांसें खत्म हो रही हो, जैसे वो शल सा हो गया हो। आर्यन बादशाह और कर्नल अंकल ने हैरान कुन आंखों से दिखा। क्राइम लेडी कोई और नहीं बल्कि आर्यन पाशा की बीवी ही थी। वो हानम थी, वो मासूम हानम थी, उसकी शरीके हयात थी, उसकी बीवी थी, जिसके लिए आर्यन दिन ब दिन पिघल रहा था, बदल रहा था। उसकी यूं हकीकत का सामने आ जाना किसी इंकशाफ से कम नहीं था। इंसानी के लिए वो तो धक ही रह गया। उसकी सूरत ने जैसे एकदम से उस पर बमबारी कर दी थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हानम उसकी बीवी क्राइम लेडी होगी, वो जिसे सही से बोलना नहीं आता था, वो चोरियां कैसे करेगी, वो किसी का कत्ल कैसे करेगी, वो अपने दुश्मनों का सीने से दिल कैसे निकालेगी। उसकी मासूम बीवी क्राइम लेडी थी। ये बात आर्यन पाशा को हजम नहीं हो रही थी। उसके चेहरे का रंग हानम को स्क्रीन में देखकर मुतगैर हो गया। आर्यन, ये तो हानम है, तुम्हारी वाइफ। कर्नल अंकल ने तस्दीक करना चाहा, मगर आर्यन तो अपने होश हवास में ही नहीं था। स्क्रीन में जगमगाता हुआ हानम का चेहरा उसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर गया। अंकल, ये कैसे हो सकता है? अंकल, हानम कैसे क्राइम लेडी हो सकती है? उसे तो बोलना भी सही से नहीं आता, और वो गैर कानूनी कामों में कैसे मलबूस हो सकती है? आर्यन के लहजे में दुख था, गम था, बेयकीनी थी, बेएतबारी थी, क्या कुछ नहीं था इस वक्त उसके लहजे में, जबकि माऊफ दि, दिमाग माऊफ हो गया था, लेकिन यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी हानम इस कदर चालाक निकली थी कि आर्यन पाशा की पूरी दुनिया एक मिनट में उजाड़ गई थी। लेकिन आर्यन, हकीकत तुम्हारे सामने है, मैं या तुम इसे झुटला नहीं सकती। जो सच है वो आज सामने आ चुका है। कर्नल अंकल उसकी पल में बिगड़ती हालत को देख रहे थे। वो जानते थे आर्यन के लिए इस हकीकत को कबूल करना काफ़ी अटल होगा। ये सच्चाई कैसे हो सकती है? उसका मुझसे निकाह करना, क्या ये भी एक चाल थी? आर्यन को याद आया, हानम ने निकाह भी तो उसे चालाकी से फंसा कर किया था। क्या पता उसमें भी उसकी कोई चाल छुपी हो। वो तुम्हें अपने चालाक चेहरे पर मासूम चेहरा सजाती बेवकूफ़ बना रही थी। कहीं उसे ये तो नहीं पता तुम सीक्रेट एजेंट हो, तुम उसकी तलाश में हो, तुम कौम के लिए काम करते हो? कर्नल अंकल एकदम से परेशान हुए जब आर्यन ने अपनी आंखों में झलकती सुर्ख और नमी को अंदर ढकेलते अपना सर नफ़ी में हिलाया। नहीं अंकल, ये बात तो मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता। फिर इसे कैसे पता चल सकती है? वैसे भी मैं हर वक्त मास्क में होता हूँ, मेरे हर मिशन में मेरा हुलिया बदला होता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि उसे पता चल सके। एक लम्हे में ही आर्यन ने अपने लहजे को मजबूत कर लिया था। वो कर्नल अंकल के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन्हें ये पता चल सके कि आर्यन पाशा का दिल पिघलने लगा था क्राइम लेडी के लिए। अच्छा, अगर इससे नहीं पता, फिर तो हम आसानी से इसे अपने काबू में करते, अदालती निज़ाम के हवाले कर देंगे। कर्नल अंकल के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह लगे थे। उसे ये सोच कर ही बेचैनी होने लगी थी वो उससे बिछड़ जाएगी। लेकिन अंकल, हमें सबसे पहले ये पता लगवाना होगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। उसका इस सब के पीछे क्या मकसद है? आर्यन का लहजा तो प्रोफेशनल था, मगर उसका धक धक करता दिल और मुसलसल इनकार में हिलता सर उसे मुश्किल में डाल रहा था। मुझे घर जाना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे हकीकत तक पहुंचना होगा। वो मेरे ज़रिए मेरा इस्तेमाल करते अपने काम कर रही है। अब मैं उसे बताऊंगा चालाकी होती क्या है। आर्यन को अचानक से हानम पर बेतहाशा गुस्सा आया। उसका दोगला चेहरा और गुज़रे लम्हे सोचते उसने ज़ोर से अपनी मुट्ठियों को दबोचा कि उसके नाखून उसकी हथेली पर धंस गए। कर्नल अंकल से इजाज़त लेकर वो लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ विला की जानिब बढ़ गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। अब इसे तो पता चल चुका है किसी की बीवी जो है क्राइम लेडी है। अब क्राइम लेडी के साथ क्या होगा, इनकी मोहब्बत का क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।